This call is now being recorded. Hello, students. Am I audible to everybody? Yes, ma'am. Okay, so today's lecture is the polymerization techniques. Okay, you all got the PDF file? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Abhishek, please share the PDF. So, polymerization techniques. In previous classes, we have studied about the polymerization mechanism, free radical polymerization, ionic polymerization, cationic anionic polymerization, coordination polymerization. Okay, so we have studied only the chemical aspects of the polymerization techniques, in which chemical aspects का मतलब क्या हुआ कि like the polymerization system, catalyst system and solvent system. ठीक है, इसके अलावा ये सिस्टम किस फेज में लेना है हमको, कितना मोनोमर लेना है, किस स्टेट में लेना है. These are the physical aspects of polymerization reactions. कि आपका मोनोमर जो है वो that will be polymerized in a condensed state or in a gaseous state, whether it is polymerized such as or along with the other inert components such as solvents and non-solvents. So factors like the nature of monomer, the type of polymerization mechanism chosen, the required physical form of polymer, and the viability of the process for industrial production. These are some physical conditions under which the polymerization is to be carried out. Okay, is it clear to everybody what factors? The nature of monomer, type of polymerization technique chosen, required physical form of polymer. Polymer हमको किस form में चाहिए, gaseous, solid, liquid किस form में चाहिए, and the type of polymerization mechanism, whether it is free radical mechanism, cationic, anionic, or coordination polymerization. And viability of this process for industrial production. These are some physical conditions under which the polymerization is to be carried out. And these varying physical conditions lead to the different polymerization techniques. ठीक है, सारी चीजें डिफरेंट हो गई. किसी में मोनोमर, किसी मोनोमर इनिशिएटर और चेन ट्रांसफर एजेंट, ये सब आपके सेम कंडीशन, सेम फिजिकल स्टेट में होंगे. किसी में डिफरेंट फिजिकल स्टेट पे होंगे, किसी में कुछ लिक्विड होगा, कुछ सॉलिड होगा, कुछ गैस होगा, लाइक दिस. किसी में मेल्ट होगा, तो किसी में जो है डिफरेंट फेज में होंगे, तो उनको मिक्सिंग के लिए उसमें कोई इंटरफेस एजेंट यूज किया जाएगा. कहीं इमल्शन फॉर्म में होगा, कहीं पर सस्पेंशन फॉर्म में होगा, कहीं पर सोल्यूशन फॉर्म में होगा. So on the basis of these physical conditions, the polymerization techniques are divided into some category. So under the polymerization technique, you have to study these types of polymerization techniques. क्योंकि जो अभी पहले आपने पढ़ा था, दैट वाज द पॉलीमराइजेशन टेक्निक जो केमिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड थी. वो क्या थी, मैकेनिज्म. बट द फिजिकल जो प्रोसेस होता है, कैसे, अभी तक आपने पढ़ा, यू हैव स्टडीड द केमिस्ट्री, है ना. क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री तो पढ़ी थी कि किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस. अब क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल वायबिलिटी. इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब आप पॉलीमर बनाओगे, सिंथेसाइज करोगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैसे पॉलीमर सिंथेसाइज होता है, तो व्हाट फिजिकल aspects should be kept in mind, and on the basis of that physical aspects or factors, the polymerization techniques are divided into some different classes. So these are the different methods. The first process is the bulk polymerization. Abhishek, share the screen. Bulk polymerization. See what happens in bulk polymerization, ki monomer is taken in liquid state and initiator is dissolved in the monomer.
ठीक है। बल्क पॉलीमराइजेशन में इनिशियल जो मोनोमर है आपका किस फॉर्म में होगा, लिक्विड स्टेट में मोनोमर लेंगे एंड इनिशिएटर को जो है वो मोनोमर में डिसॉल्व कर देंगे। और जो चेन ट्रांसफर एजेंट है, चेन ट्रांसफर एजेंट का काम क्या है, टू कंट्रोल द मॉलिक्यूलर वेट। कैसे कंट्रोल करता है चेन ट्रांसफर, कि एक जो ग्रोइंग चेन है उसको टर्मिनेट करके दूसरी चेन जो होती है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ये जो चेन ट्रांसफर एजेंट होते हैं, है ना, टर्मिनेशन स्टेप में चेन ट्रांसफर एजेंट जैसे थायोअल्कोहल यूज करते हैं, तो चेन आपकी जो ग्रोइंग चेन होती है वो सल्फर से जुड़ जाती है और दूसरे जो है एच रेडिकल दूसरे पे कनेक्ट हो जाता है चेन पे, उसको ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो बाय जब चेन लेंथ आपका टर्मिनेट हो जाएगा तो उसमें इट मींस उसका मॉलिक्यूलर वेट कंट्रोल हो गया वहां पर। तो चेन ट्रांसफर एजेंट का काम क्या है, टू कंट्रोल द मॉलिक्यूलर वेट। तो ये चेन ट्रांसफर एजेंट it is also dissolved in the monomer itself. So in bulk polymerization, what is done? The monomer is taken in the liquid state. Initiator and chain transfer agent are dissolved in this monomer. इसका मतलब होल सिस्टम किसमें किस फेज में है, होल सिस्टम इज इन होमोजेनस फेज, क्योंकि सब डिसॉल्व फॉर्म में हो गए, लिक्विड फॉर्म में हो गए। होमोजेनस फेज कि जब कैटलिस्ट और रिएक्शन क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, इन द फेज इज होमोजेनस। तो यहाँ पर आपका इनिशिएटर, chain transfer agent, monomer all are in same phase, liquid phase. Now the reaction mass is heated or exposed to a radiation source. क्योंकि इनिशिएटर रिएक्शन कब स्टार्ट होगा, नाउ कम टू द केमिस्ट्री, कब स्टार्ट होगा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जब आपका इनिशिएटर जो है वो क्या देगा, विल गिव द रेडिकल्स और द एनायंस, रेडिकल और द आयंस, कैटायन और एनायंस। उसके लिए क्या चाहिए, रेडिकल को आपको या तो हीट देनी होगी या रेडिएशन देना होगा, ठीक है। तो ये मिक्सचर किसका किसका मिक्सचर, मोनोमर, इनिशिएटर एंड चेन ट्रांसफर एजेंट, तीनों को मिक्स कर दिया। द होल सिस्टम इज इन होमोजेनस फेज। दिस इज नोन एज द रिएक्शन मास एंड दिस मास इज हीटेड और exposed to a radiation source for initiating the polymerization process. And during this heating or radiation exposure, this reaction mass is kept under agitation for proper mixing of mass and heat transfer. है ना, एजिटेशन का मतलब क्या होता है कि वो सर्कुलर मोशन में या तो शेकिंग होती रहे या फिर जैसे रोटेटर में उसको रोटेट करते रहे, स्टरर इसे यूज करते हैं, स्टरिंग प्रॉपर होती रहे। तो प्रॉपर स्टरिंग किस लिए करते हैं कि एक तो जो हीट जो आपका वो प्रॉपर जो है वो मास जो बने, प्रॉपर मिक्सिंग होती रहे मास की, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट क्या होती रहे, ट्रांसफर होती रहे। So in bulk polymerization, as the polymerization proceeds, the viscosity of medium increases. जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाता है, जो टाइम बढ़ेगा तो विस्कोसिटी जो होती है बहुत फास्टली जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते हैं। क्योंकि मोनोमर आपका लिक्विड स्टेट में उतना ही है, मोनोमर की क्वांटिटी फिक्स है और वही लिक्विड स्टेट में रहे, बाकी आपका इनिशिएटर और जो चेन ट्रांसफर है वो उसमें डिसॉल्व हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो विस्कोसिटी, जैसे जैसे टाइम बढ़ने का मतलब क्या है, as the time increases means the polymerization reaction will start and 1 minute beta. So let's continue. So as the polymerization process proceeds, जैसे जैसे पॉलीमर फॉर्म होना शुरू होता है, स्टार्ट हो जाता है, तो पॉलीमर जैसे जैसे सिंथेसाइज होता जाता है तो विस्कोसिटी जो है वो सिस्टम की बढ़ती जाती है।
है ना, और एक टाइम पे आता है कि एजिटेशन जो है वो मिक्सिंग जो होती है डिफिकल्ट हो जाती है। मीडियम जो है वो दिस इज द मींस द दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस बल्क पॉलीमराइजेशन, कि जैसे एज द मीडियम गेट्स विस्कस द डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग पॉलीमर चेन बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड और probability of chain collision becomes less and termination becomes difficult. इतना विस्कस सोल्यूशन बना था कि चेन एंड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से टर्मिनेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो जो एक्टिव रेडिकल साइट्स होते हैं दे एक्यूमुलेट एंड द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीजेस इनॉर्मसली, है ना। जो एक्टिव रेडिकल साइट्स होते हैं वो सब एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। एंड दिस होल फिनोमेनन इज कॉल्ड द ऑटो एक्सेलरेशन। So what is auto acceleration? That in bulk polymerization, as the medium gets viscous, the diffusibility of these growing polymer chain becomes restricted and the probability of chain collision becomes less and termination becomes difficult. So the active radical accumulate and the rate of polymerization increases enormously. This is called the auto acceleration. And this auto acceleration sometimes lead to an explosion due to the uncontrolled exothermic reaction. क्योंकि सारे एक्टिव साइट क्या होते हैं, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे रिएक्शन में रेट जो है सडनली बहुत तेज हो जाता है, और फास्ट होने से क्या होता है, तो हीट जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होगी, बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डिफ्यूजिबिलिटी, क्योंकि स्पेस होता नहीं है, सॉल्वेंट जो है वो आपका कम हो जाता है, सोल्यूशन बिकम्स हाईली विस्कस, जिसकी वजह से हीट प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो पाती है and it can lead to an explosion. So this is the drawback of the bulk polymerization. Whereas this bulk polymerization is quite simple and product obtained is high purity. और इसमें इनिशिएटर और चेन ट्रांसफर एजेंट के अलावा there is no need of any other additive. So the polymer obtained from the bulk polymerization can be used as such. Since no isolation from other components is involved, क्योंकि कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड भी नहीं करते हैं इसमें, इसलिए इम्प्योरिटी के चांसेस नहीं होते हैं। प्योर पॉलीमर इज ऑब्टेन। तो जो पॉलीमर बल्क पॉलीमराइजेशन से बनता है उसको एज सच यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो है इम्प्योरिटीज या किसी कंपोनेंट के आइसोलेशन के चांसेस जो होते हैं बहुत कम। This bulk polymerization technique is used in the free radical polymerization of methyl methacrylate or styrene to get transparent molding powders and cast sheeting and also vinyl chloride to get PVC resin. Bulk polymerization किसके synthesize में यूज होता है? Polymerization of methyl methacrylate जो क्या बनाएगा, PMMA, and styrene will form the polystyrene. And this gives the transparent molding powders. It is also used in the polymerization of the PVC, polyvinyl chloride, from the vinyl chloride. Second type of polymerization is the solution polymerization. See what happens in solution polymerization. The monomer is dissolved in a suitable inert solvent. Monomer is dissolved in suitable inert solvent along with the chain transfer agent. ठीक है, मोनोमर को किसमें डिसॉल्व करते हैं, एक इनर्ट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं विद चेन ट्रांसफर एजेंट, if there is a requirement of the chain transfer agent. And the free radical initiator is also dissolved in solvent medium, while the ionic and coordination catalyst can either be dissolved or suspended. So what is the difference between bulk and solution polymerization? In bulk polymerization,
मोनोमर किस स्टेट में लेते हैं? लिक्विड स्टेट. मोनोमर is taken in the liquid state and the initiator is dissolved in the monomer. Initiator and chain transfer agent both are dissolved in the monomer and monomer is taken in the liquid state. जबकि solution polymerization में क्या है? Monomer is dissolved in a suitable inert solvent. Inert solvent means the solvent should not participate in the polymerization reaction. जो पॉलीमर फॉर्म होगा, पॉलीमर सिंथेसाइज होगा, उसका जो रिएक्शन होगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, that inert solvent in which the monomer is dissolved, that inert solvent should not react to that or should interfere that polymerization reaction. And this inert solvent, इसमें क्या क्या डिसॉल्व करेंगे? मोनोमर डिसॉल्व करेंगे, चेन ट्रांसफर एजेंट एंड फ्री रेडिकल इनिशिएटर. जबकि जो आयनिक एंड कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट है ना, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए फ्री रेडिकल, लेकिन जो आयनिक और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन उनके लिए जो इनिशिएटर यूज करेंगे, दे कैन ईदर बी डिसॉल्व और सस्पेंडेड फॉर्म में. वो सस्पेंडेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में हो सकते हैं. जबकि फ्री रेडिकल इनिशिएटर को क्या होना चाहिए? दैट शुड बी कंप्लीटली डिसॉल्व. So what is the role of this inner solvent? जो ऑटो एक्सेलरेशन हो रहा है ना बल्क पॉलीमराइजेशन में, कि जो अनकंट्रोल्ड विस्कस पॉलीमर बन रहा है एंड देयर इज नो स्पेस फॉर द no space for the heat transfer. So that disadvantage can be removed in this solution polymerization by using the inner solvent. The presence of inner solvent medium helps to control the viscosity increase and promote a proper heat transfer. है ना, जो अनकंट्रोल्ड जो आपकी विस्कोसिटी विस्कस पॉलीमर फॉर्म होता है बल्क पॉलीमराइजेशन में, तो इनर सॉल्वेंट अगर यूज करते हैं तो वो सॉल्वेंट क्या करेगा? एक तो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा हीट ट्रांसफर में, और दूसरा जो हाईली विस्कस पॉलीमर बनने से कंट्रोल करेगा. The major disadvantage of the solution polymerization technique is that, however inert the selected solvent may be, the chain transfer to the solvent cannot be completely ruled out, and hence it is difficult to get very high molecular weight product. कितना भी हम इनर सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लें, लेकिन ये हमेशा जो है वो क्या करेगा? तो चेन ट्रांसफर जो सॉल्वेंट सिस्टम है, तो चेन ट्रांसफर मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, तो जिसकी वजह से जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है, दैट जो कि बल्क पॉलीमराइजेशन में हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर इज फॉर्म, दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन ड्यू टू दी दिस इनर्ट सॉल्वेंट. And the polymer formed will also have to be isolated from the solution either by the evaporation of the solvent or by the precipitation in non-solvent. And the removal of their final traces is always extremely difficult. यानी कि जो पॉलीमर बनेगा वो किस पे बनेगा? That will form in इनर सॉल्वेंट. बना उससे इनर सॉल्वेंट को क्या करना? सेपरेट करना है. तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? या तो सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दें, ठीक है, या तो इवेपोरेशन कर दें किसका? सॉल्वेंट का, या फिर पॉलीमर का क्या कर दें? प्रेसिपिटेशन कर दें नॉन सॉल्वेंट में. भाई जिस सॉल्वेंट में पॉलीमर डिसॉल्व फॉर्म में है उसको क्या करें? नॉन सॉल्वेंट ले ले, तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा. लेकिन उसमें भी प्रेसिपिटेशन में जो फाइन ट्रेसेस होते हैं उनको जो है वो सेपरेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो यील्ड जो है वो एज कंपेयर टू बल्क पॉलीमराइजेशन, जो यील्ड है सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन, दैट विल बी लेस.
solution polymerization techniques can advantageously be used where the polymer is used in the solution form. ठीक है, तो जहां पर भी पॉलीमर को सोल्यूशन फॉर्म में यूज करना है, क्योंकि अगर आप सोल्यूशन फॉर्म में यूज नहीं करोगे, प्योर फॉर्म में यूज करोगे, तो वो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेशन में यील्ड जो है वो दैट विल बिकम लेस। तो अगर सोल्यूशन फॉर्म में कहीं पर पॉलीमर को यूज करना है, देन द सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक इज द बेस्ट। As in the case of certain adhesives and coating compositions, or in a system where the polymer formed is insoluble in monomer or solvent and precipitates out as a slurry and is amenable for easy isolation. तो जहां इन सारे सिस्टम से पॉलीमर को यूज करना है, then the solution polymerization is advantageous. When we come to the practical application, the industrial production of polyacrylonitrile by free radical polymerization and that of polyisobutylene by cationic polymerization use the solution technique. कहाँ पर? Industrial production of polyacrylonitrile by free radical polymerization of polyisobutylene by cationic polymerization. ठीक है, polyacrylonitrile किससे बनेगा? acrylonitrile से. It will be prepared by the free radical polymerization in solution by this using solution polymerization. और दूसरा क्या है? By cationic polymerization जो polyisobutylene है. Polyisobutylene can be prepared by the using cationic polymerization mechanism by this solution polymerization. Block copolymers can also be prepared, and some also obviously some block copolymers are also made by using the solution polymerization technique. So I think it is clear to everybody that is bulk polymerization and solution polymerization. So bulk polymerization में क्या है? What is the difference between bulk polymerization and solution polymerization? In bulk polymerization, monomer is taken in liquid state, and initiator and chain transfer agents are dissolved in that monomer. यानी कि whole reaction mass exists in a homogeneous space. And in bulk polymerization, a high molecular weight polymer is obtained. Disadvantage of bulk polymerization that due to the auto acceleration, there are chances of the explosion or blast. ठीक है, chances of the blast, not explosion, chances of the blast. So high molecular weight product is obtained by the bulk polymerization. But in solution polymerization, an inert solvent is used to dissolve the monomer, initiator, and chain transfer. So for free radical mechanism, the initiator should be in dissolved form. For ionic and coordination polymerization, the initiator can be in dissolved form or in suspended form. Due to the interfering nature of this inert solvent, the high molecular weight polymer is not obtained, or you can say it is difficult to obtain a high molecular product using the solution polymerization. And the solvent can be removed from the polymer either by the evaporation or by the precipitation of the polymer in the non-solvent system. So these and this inert solvent also helps in control
control the high viscosity of the polymer synthesis and the heat transfer also. So these are the bulk polymerization and solution polymerization. Third type is the suspension polymerization. ठीक है, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन. सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में देखिए, what happens in suspension polymerization that only water soluble monomers can be polymerized by this technique. केवल कौन से पॉलीमर्स पॉलीमराइज होंगे? ओनली वाटर सॉल्युबल. जो पॉलीमर्स, जो मोनोमर्स वाटर सॉल्युबल हैं, केवल उनको ही जो है वो पॉलीमराइज किया जा सकता है यूजिंग सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन. So the monomer is suspended in water in the form of fine droplets. ठीक है, बिकॉज द मोनोमर क्या है, इसमें मोनोमर जो वाटर इनसॉल्युबल मोनोमर. ठीक है, तो वाटर इनसॉल्युबल मोनोमर जब लेंगे तो वाटर में क्या होगा? डिसॉल्व तो होगा नहीं. तो वो इनसॉल्युबल मोनोमर किस फॉर्म में रहेगा? ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रहेगा. दो फेज हो गए आपके पास. So in suspension polymerization, only water insoluble monomers can be polymerized. So these monomers are suspended in a water phase. ठीक है, जैसे वो, जैसे ऑयल, ऑयल आपका क्या है? वाटर इनसॉल्युबल. जब ऑयल को वाटर में डालते हो तो क्या होता है? जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स होती है दैट फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर. And when this monomer is suspended in water in the form of fine droplets, then these are stabilized and prevented from coalescing by using suitable water soluble protecting colloids, surface active agent and by stirring. तो ये वाटर जो ड्रॉप्स हैं, जब बहुत ज्यादा अमाउंट पे, जब बहुत सारे ड्रॉप्स हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा देन दे विल कोलेस, एक दूसरे से कोलेस करके स्टिक हो जाएंगे, है ना. एक दूसरे से कोलेसिंग ना हो, टू प्रिवेंटिंग द ड्रॉप्स फ्रॉम कोलेसिंग, वाटर में क्या यूज करते हैं? वाटर सॉल्युबल प्रोटेक्टिंग कोलॉइड्स, सरफेस एक्टिव एजेंट और कंटिन्यूअस स्टरिंग, जिससे कि ड्रॉप्स क्या रहे? सेपरेटेड रहे. ड्रॉप किसकी है? मोनोमर की. द साइज ऑफ द मोनोमर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड depends on the monomer to water ratio. ठीक है, जो मोनोमर के ड्रॉप्स बनते हैं वाटर सरफेस पे, वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन मोनोमर टू वाटर रेशियो, द टाइप ऑफ द concentration of the stabilizing agents and also on the type and speed of the agitation employed. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोनोमर ड्रॉपलेट का साइज जो है वो साइज जिस पर डिपेंड करता है? द मोनोमर टू वाटर रेशियो, द टाइप एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टेबलाइजिंग एजेंट्स एंड ऑन द टाइप ऑफ द स्पीड एंड एजिटेशन एम्प्लॉयड. बहुत अगर फास्ट अगर आप कर देंगे एजिटेशन, स्टरिंग अगर बहुत फास्ट कर देंगे तो ड्रॉप्स क्या हो? ब्रेक हो जाएंगे. बहुत स्लो करेंगे तो भी कोलेस हो जाएगा, है ना. जो इनिशिएटर यूज करेंगे, दैट इनिशिएटर्स आर मोनोमर सॉल्युबल. तो इनिशिएटर जब ले, तो देखिए व्हाट इज द कंडीशन? द मोनोमर शुड बी वाटर इनसॉल्युबल. तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर में मोनोमर को मिक्स किया तो मोनोमर ड्रॉपलेट्स बन गए. अब जो इनिशिएटर लेना है, दैट इनिशिएटर शुड बी मोनोमर सॉल्युबल. तो जब इनिशिएटर आप जैसे ही ऐड करते हो तो इनिशिएटर क्या करेगा? मोनोमर में डिसॉल्व हो जाएगा. यानी कि किसमें डिसॉल्व हो गया? ड्रॉप में डिसॉल्व हो गया. ठीक है, और वो ड्रॉप्स क्या है? उनमें जो आपने सरफेस एक्टिव एजेंट या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स और ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टरिंग, these drops will be separated from each other. So what will happen? Every drop, है ना, every drop किसकी तरह बिहेव करेगी? Each monomer drop is isolated and independent of the other drop. तो ये किसकी तरह हो गया?
ये एक एवरी ड्रॉप will act as an independent bulk polymerization nucleus. हर ड्रॉप पे पॉलीमराइजेशन होगा और हर ड्रॉप किसकी तरह बिहेव करेगी, जैसे बल्क पॉलीमराइजेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एवरी ड्रॉप में देयर इज अ मोनोमर एंड देयर इज अ इनिशिएटर and all these drops are separated from each other. The individual drop will act as a bulk polymerization. And the continuous aqueous phase जो है वो aqueous phase यानी कि जो water है वो क्या करेगा, सारे मोनोमर ड्रॉपलेट को एक दूसरे से सेपरेट रखेगा, बट that water phase, because there is every droplet is acting as a bulk polymerization, so the liberated heat जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको कौन कंट्रोल करेगा, वाटर। जो एक्वस फेज है जिसमें कि मोनोमर ड्रॉपलेट फ्लोट कर रहे हैं, वो दैट वाटर विल एक्ट एज टू कंट्रोल द हीट, और विल दिस वाटर इज यूज्ड एज अ हीट ट्रांसफर मीडियम। ठीक है, सो एज द एंटायर bulk of the process, monomer is divided into innumerable tiny droplets. So the kinetic chain length of the polymer formed is also quite good. So polymerization proceeds to 100% conversion and product is obtained as a spherical beads or pearl. जो पॉलीमर मिलता है किस फॉर्म में मिलता है, बीड्स, क्योंकि एवरी ड्रॉप जो है वो दैट विल बिकम अ पॉलीमर। वो मोनोमर ड्रॉप है, वो मोनोमर ड्रॉप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा। That's why this suspension polymerization is also known as bead or pearl polymerization. And the isolation of the product become easy because this involves only the filtration of beads and the removal of surface active agents and protective colloids by water washing. Filtration से क्या किया, बीड्स जो है वो एक्वस फेज से अलग हो गए, उसका सिंपल वॉशिंग कर दी, उससे सरफेस एक्टिव एजेंट और प्रोटेक्टिव कोलाइड जो क्या हो गए, निकल गए। अब ये जो वाटर वॉश, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, बीड्स हैं, इनको क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, और मोल्डिंग के लिए इनको क्या करेंगे, ये आपका पॉलीमर बन गया। एंड फॉर मोल्डिंग पर्पसेस these can be dissolved in suitable medium. ठीक है, तो जिस जहां पर भी इसको एज एडहेसिव कोटिंग या जहां पर भी इसका एप्लीकेशन करना है उसके लिए सुटेबल मीडियम में क्या कर देंगे, इसको डिसॉल्व कर देंगे, देन दिस विल बी यूज्ड। तो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में क्या है कि सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में वाटर, वो जो मोनोमर होगा क्या होगा, दैट विल बी वाटर इनसॉल्युबल, एंड एक्वस फेज में दीज मोनोमर ड्रॉप्स विल फ्लोट। एक्वस फेज लेके उसमें मोनोमर ड्रॉप्स डाल देंगे वाटर में, और इनिशिएटर जो लेंगे वो दैट शुड बी मोनोमर सॉल्युबल। इनिशिएटर यूज करते हैं तो मोनोमर में डिसॉल्व हो जाता है, और मोनोमर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे से कोलेस ना करें, इसके लिए इनमें क्या करते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट प्रोटेक्टिव कोलाइड्स यूज करते हैं, जिससे कि ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से दूर रहे एंड देयर शुड बी प्रॉपर एजिटेशन और मिक्सिंग और स्टरिंग कि ड्रॉपलेट सेपरेट रहे। नाउ इंडिविजुअल ड्रॉप विल एक्ट एज द बल्क पॉलीमराइजेशन सिस्टम। जैसे बल्क पॉलीमराइजेशन में एक ही कंटेनर में एक साथ बन रहा था, यहाँ पर क्या है, एवरी ड्रॉप विल एक्ट एज ए बल्क पॉलीमराइजेशन सिस्टम। बट बल्क पॉलीमराइजेशन में ड्यू टू ऑटो एक्सेलरेशन वहां पर क्या है, मोनोमर सॉल्युबल ही लिया गया है, मोनोमर में ही आपका डिसॉल्व कर लिया गया है चेन ट्रांसफर एजेंट और इनिशिएटर को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि एक्वस फेज है, तो एक्वस फेज जो है वो हीट को कंट्रोल करता है, तो ऑटो एक्सेलरेशन के चांसेस जो है वो नहीं होते, प्रॉपर हीट ब्लास्ट के चांसेस नहीं होते यहाँ। और जो मोनोमर, जो पॉलीमर सिंथेसाइज होगा, हर ड्रॉपलेट विल कन्वर्ट टू द पॉलीमर। ये तो पॉलीमर किस फॉर्म में, बीड्स के फॉर्म में मिलेगा। तो सेपरेशन कैसे करेंगे, बाय फिल्ट्रेशन, और उसके बाद जो है वो वाटर से वॉश कर देंगे, जिससे कि प्रोटेक्टिव कोलाइड और सरफेस एक्टिव एजेंट जो है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए।
अब इनको स्टोर कर लेंगे, ड्राई करके स्टोर हो जाएगी, दिस इज ए पॉलीमर्स, बीड्स के फॉर्म में होगा। लेकिन जब इसको यूज करेंगे देन इट कैन बी यूज बाय डिसॉल्विंग इनटू सुटेबल सॉल्वेंट फॉर मोल्डिंग पर्पसेस। सो पॉलीस्टाइरीन बीड्स, जिससे कि क्या बनता है, पॉलीस्टाइरीन फोम बनता है ना। अगर आपने मैट्रेसेस वगैरह देखे हो, जैसे थर्माकोल भी देखा होगा, तो क्या है, किस फॉर्म में, बीड्स के फॉर्म में होता है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, ये आपके जो भी फोम बनता है, जहां पर फोम किस फॉर्म में, बीड्स के फॉर्म में। तो ये पॉलीस्टाइरीन बीड्स किससे बनते हैं, ये आपका पर्ल पॉलीमराइजेशन से, स्टाइरिन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर बीड्स and polyvinyl acetate beads. These are produced by the suspension technique using free radical initiator. So this is all about the three techniques: the pulp polymerization technique, solution polymerization technique, and suspension polymerization technique. Next technique is the emulsion polymerization. It is quite long process and it will take some more time. So it is not possible to continue today. The next class will start with the emulsion polymerization. Okay. So over for today.